Okay. Good evening, everyone. Today's process graph class 2. I hope you have attended the part 1. If you haven't, I've uploaded it and you can watch it even after this class. I don't think you can attend this even if you don't know about the first class. It's fine. But I would say go attend the first class and that will clarify all your doubts. And these 2 classes are enough for all the process graphs if you attend them properly. Okay, so today I'm going to cover 3 types of like a different type of a process graph. There are only 3 graphs like this in the book. So my main focus is just these 3 graphs today. Okay, and I'll tell you what the difference is. Okay, so if you look here, in a normal process graph, they only show the steps of something, like how something is done. For example, if you look here, it says the diagram below shows the multi-stage production of beer. So it's only showing the production stage. Okay. Similarly, if you come here, it shows the stages of processing cocoa beans. So it's showing the process. That's what we did yesterday. Now, today's class, the graphs I want to cover today, they are special in the sense that they show how something is made also, like the construction part also, like the structure of something. So if you look here, how a simple water filter is constructed and how it functions. So it talks about its functioning, but it also talks about its structure. And this is mentioned in the question itself. So there are 2-3 process graphs जिनके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर भी बता रहे हो. एक तो ये एग्जांपल हो गई. I'll show you another one. How do you come to know ये वाला ग्राफ है वो भी बताता हूँ. So we'll cover everything one by one. Okay, so let me show you another one. If you come here, see here. The 2 diagrams describe the main parts of a hot air balloon. So पहले वो कहते हैं कि उसके main parts बता रहे हैं and how it works. So the question itself is telling you कि वो उसके structure, उसके parts वगैरह भी बता रहे हैं. So this is the second question where they're talking about the structure as well and how it functions. 2 parts. Similarly, there's one more question like that, this one. The diagram below describes the structure of a home smokery and how it works. Again, 2 parts, the structure and how it works. ये special type का process है जिसके अंदर 2 parts हैं. There are 2 parts to this process. If you look at the other process chart, it only talks about the functioning, like shows the process of making smoked fish. There is no structure, there's no nothing कि कोई parts बता रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है. सीधा बस उसकी functioning बताई हुई है. Similarly, here also, if you look here, the process of making different types of tea. Here also, the recycling process of plastics. So, I hope it is clear what I talked about today. We are going to cover 3 special types of process graphs in which they also talk about the structure or the parts. Like the functioning के अलावा उनके parts की बात भी करते हैं. जो process में parts हैं उनकी बात भी करते हैं. How do I attempt this graph? How is it different from the other process graph? So that's what we are going to cover today. So first of all, anyone has any doubts कि मैंने कौन से process charts की बात करी है? How are they different from the normal ones that we talked about yesterday? If you have any questions, please ask me right now. Are you clear? Okay, different है. Can we move forward? सर हाँ Okay, I'll explain again. ठीक है. यूसुफ ऐसे क्या confusion है? Tell me once. सर इसमें 2 चीज लिखना है क्या? 2 चीजें लिखना है. मैं अभी बताऊंगा सारा कैसे करना है, पर ये समझ में आ गया ये कैसे डिफरेंट है. मतलब क्वेश्चन में ही लिखा होगा कि उसका स्ट्रक्चर भी बताया जा रहा है. Like, look here, it says the diagram below describes the structure of a home smokery and how it works. तो क्वेश्चन में ही 2 पार्ट्स करे हुए. Yesterday we are talking. Only about the Yesterday we are functioning. talking about the process. हाँ प्रोसेस. Only how it works. तो yesterday हम बता रहे थे सिर्फ कैसे वो काम करता है. आज हम बात कर रहे हैं कि उसके उसके पार्ट्स भी क्या है. तो एक पार्ट ऐड हो गया क्वेश्चन में. द फर्स्ट पार्ट इज के उसके उसके जो जो भी चीजें यूज हो रही हैं, क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, दैट इज ऑल्सो गिवन. इज इट क्लियर? यस. ठीक है. सो देर आर 3 क्वेश्चंस लाइक दिस. इफ इट्स क्लियर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ अ होम स्मोकरी.
Similarly, if you come here, they say the main parts of a hot air balloon and how it works. And similarly, one more question like that, जहाँ पे वो बोलते हैं कि पहले उसका construction बता रहे हैं, how it is constructed. Again, it is about the main parts. Like this, how a simple water filter is constructed. Now, what I'm going to do is I'm going to cover two of them with you properly. The third one, you're going to do it as a homework. So I'm going to take one easy one difficult one, and I'm going to give you the third one. Third one जैसा मर्जी होगा, मैं एक difficult कर रहा हूँ, एक easy कर रहा हूँ. Okay. So we'll take this question for now and we'll try to attempt it. Okay. So first of all, let's talk about the introduction, the changes in the introduction. Introduction में मैं बस ये लिखता हूँ कि process graph or the chart shows the structure also. मतलब उसका structure भी बताता है. तो I would have written the process graph illustrates the structure. If you don't want to write the structure, you can also write the main parts of a simple water filter. And the steps involved in the purification of water, whatever that I've learned. वो वही है जो मेरा second part है, it's the same part that we did yesterday. So ये वाला part तो कल वाला part है. Steps involved in the purification of water. The same thing we did yesterday. यहाँ पे ये वाला part add हो गया, the structure of the main parts of a simple water filter. This part I have added to the introduction. Now, if you have any doubts, please let me know. Otherwise, we move ahead. Introduction is clear? Yes or no? But how many steps we have to mention or not? नहीं, वो overall का part है, right? Let it come. I'm just talking about the introduction. That part, Sameem, that we wrote in the overview. अभी overview पे आना है. Okay. Then is the introduction clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So ये part add हो गया, देखो. Structure or the main parts of a simple water filter. Okay. Now let's move on to the overview. In the overview or the overall, the way we write the overall, we are not going to mention the steps here. We are going to mention the number of paths. कितने paths हैं? So overall, it is clear that the simple water filter consists of, I'll not say steps, I'll say how many paths. I would say here you can say what do you want to call it? Two tanks? क्या बोलोगे इसको? What would you call it? This is called a tank. Can we call this also a tank? Yes, sir. So two tanks. One for storage and the other for one for the filtration of water, impure water, and the other for the storage of water. बस यहाँ पे ना हमने जो पहली लाइन लिखनी है, it's not going to be about the steps, it's going to be about the paths. Please remember this. It's not about the steps, it's about the paths. So यहाँ पे मैंने steps की बात नहीं करी है, यहाँ पे मैंने paths की बात करी है. So two tanks हैं, मतलब paths हैं. One जो एक part है वो यूज हो रहा है किसके लिए? फिल्ट्रेशन के लिए. दो tanks है, एक फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है, another for the storage of water. These are the two main paths है. बाकी उनकी डिस्क्रिप्शन हम अंदर लिखेंगे. सो यहाँ पे मैं बस मेन पार्ट्स का नाम लिखता हूँ. दैट्स इट. इन दी ओवरव्यू आई राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स. आई मेंशन कितने पार्ट्स हैं उनका नाम लिखता हूँ, मैं स्टेप्स नहीं लिखता. दैट्स व्हाट आई डू. द फर्स्ट सेंटेंस. देन द प्रोसेस ऑफ purification or filtration starts with the pouring of impure water in the first tank into the first tank. Into would be a better word.
and ends with the storage of water, storage of pure water in the second tank. That would be my second sentence. So this is my overview. The overview का जो second part है वो हमारे उससे match करता है. The first, the second part is कि हम पहला step लिखते हैं और last step लिखते हैं. We are still writing that here. What we are not writing is the number of steps. Instead of writing the number of steps, we talk about the number of paths. कि कितने paths है उसके. यहाँ पे मेरे को लगा कि 2 ही paths है main, तो मैंने दोनों paths की बात कर दी. That's it. और कुछ भी नहीं करा. So, anyone has a doubt here, please let me know. सर Yes. जो हम लोग कल प्रीवियस पढ़े थे Yes. उसमें सर प्रोसेस था तो ओनली ओवरऑल में हम प्रोसेस को लिखे थे कि मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है. हाँ, और हमने पहले स्टेप्स भी लिखे थे ना कि कितने हाँ स्टेप. कि 7 है 10 है ठीक है. 5 तो है. अभी हमने स्टेप्स नहीं लिखने. हमने क्या करना है, हमने लिखना है कि उसके कितने पार्ट्स हैं. तो अब हम पार्ट्स की बात करेंगे, हम स्टेप्स की नहीं. जैसे यहाँ पे अब देख 2 पार्ट्स है, मैंने कहा कि एक 2 टैंक्स है, 2 पार्ट्स हो गए ना एक तरह से मेन. यस सर. ठीक है. और बता देंगे, मैंने बोला एक फिल्ट्रेशन के लिए काम आता है और एक स्टोरेज के लिए काम आता है. स्टोरी. यस सर. That's it. बस इतना. सेकंड फिर सेकंड में प्रोसेस. सेकंड में प्रोसेस तो लिखना ही है ना, तो प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप लास्ट. यस वो वाला सेम आ जाएगा. यस इज इट क्लियर? यस सर. Okay. Anyone has a doubt here, please let me know. Otherwise, we move forward. We'll practice one more after this. So तुम्हारे को अगर अभी डाउट आ रहा है तो वहां पे पूरा मौका मिलेगा to clarify yourself. Okay. So we've written the introduction and we have written the overview. Let's move on to the body paragraphs. अब body paragraph में क्या करना है? You're going to make 2 body paragraphs. First body paragraph will explain the parts. कि ये पार्ट है, पहले पार्ट में क्या है, पहले टैंक में क्या है, सेकंड टैंक में क्या है, बस ये बताना है. ठीक है. जो सेकंड बॉडी पैराग्राफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शनिंग. फंक्शनिंग कैसे बताओगे कि सबसे पहले जो फर्स्ट कंटेनर का या फर्स्ट टैंक का लिड रिमूव कर रहे हैं, उसके अंदर पानी डाल रहे हैं, पानी पास कर रहा है 3 लेयर से. सो यू आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनिंग. सो पहले वाले में हम सिर्फ पार्ट्स बताएंगे. पार्ट्स में हम क्या बताएंगे, जैसे 2 कंटेनर हैं या 2 टैंक्स हैं. पहले वाले टैंक्स में जो 3 लेयर्स हैं, सबसे ऊपर सैंड का लेयर है, मिडिल में चारकोल है, ग्रेवल है. ठीक है. और ये जो है, ये वाला टैंक है, वो कनेक्टेड है सेकेंड टैंक के साथ थ्रू अ यू शेप्ड पाइप. तो एक पाइप के साथ कनेक्टेड है. ठीक है. स्टोरेज टैंक के साथ. एंड स्टोरेज टैंक के बॉटम पे एक टैप है. तो ऐसे करके हम पार्ट्स बताएंगे, हम कोई फंक्शनिंग नहीं बताएंगे कि पानी डाला जाता है. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शनिंग इन द फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, ओनली द पार्ट्स. सेकेंड बॉडी पैराग्राफ विल बी द फंक्शनिंग. That's how I write this graph. ऐसे लेंथ बनता है. अगर तुम इकट्ठे लिखोगे तो तुम मेरे पास आओगे कि लेंथ नहीं बन रहा, it's too short. So that is why I try to attempt it like this. And because क्वेश्चन में भी 2 चीजें दी हुई हैं, मैं 2 चीजें करके लिखता हूँ ताकि मेरे को लगे, मैंने एग्जामिनर को भी लगे I've written the complete thing. मैंने आधा नहीं लिखा है. तो if the question is mentioning 2 things, why don't I make 2 BPs? 1 BP for first thing, the second BP for the second thing. So in detail, so I'll start here. In detail, the water filter consists of 2 water tanks, 2 tanks. The first tank is used for filtration. It has 3 layers with which one is at the top? With sand at the top, gravel at the bottom, and charcoal in the middle. With sand at the top, charcoal in the middle, and gravel at the bottom. The second tank is used for storage of pure water. It has a tap
at the bottom for taking out water when required. Both these tanks are joined to each other or connected to each other, whichever word you want to write, connected to each other with a U-shaped pipe. That is what I would end up writing here. If you have a doubt, please let me know. Otherwise, this is what I would have written in the first paragraph. सिर्फ पार्ट्स बता रहे हैं, हम कोई फंक्शनिंग नहीं बता रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, फंक्शनिंग हम सेकंड में बताएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ टैंक्स की बात हो रही है। दो टैंक्स हैं, पहला वाला टैंक फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है, इसके अंदर 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स बता दी, सैंड एट द टॉप है, चारकोल मिडिल में, ग्रेवल एट द बॉटम है। सेकेंड टैंक यूज होता है स्टोरेज के लिए, इसके बॉटम में एक टैप है फॉर टेकिंग आउट वाटर व्हेन रिक्वायर्ड। बोथ दीज टैंक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद अ यू शेप पाइप। दैट्स व्हाट आई वुड हैव डन। अब ये बताओ, इफ एनीवन हैज अ डाउट प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज सिंपल सिंपल इंग्लिश में मैंने सिर्फ पार्ट्स बताए हैं, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। आर यू क्लियर? Sir, we cannot see the diagram. You cannot see the diagram? Okay. Let me do one thing. मैं इसको नीचे कर देता हूँ. Okay. And I'll make it a bit shorter. So if you see here, Sameem, there are 2 tanks. Clear? Yes, sir. Second tank has a tap at the bottom. It has a tap at the bottom for taking out water when required. Second tank. And both are joined by U-shaped pipe. तो ये मैंने U-shaped pipe बोला है. क्योंकि अगर if you look at it, it's a U-shaped pipe like this. U है. Okay. And ये 3 layers हैं. Sand, charcoal and gravel. Sand, charcoal and gravel. Sand at the top, charcoal in the middle and gravel at the bottom. ये वाला जो टैंक है यूज हो रहा है प्योरिफिकेशन के लिए, एंड ये वाला टैंक यूज हो रहा है किसके लिए? फॉर स्टोरेज. दैट इज व्हाट आई रिटन. But sir, what about the other two things that is above the tank? वो मैं Is, लिखूंगा ना, देखो मैं बोलूंगा वो मेरे स्टेप्स में आएगा कि पहले वाले टैंक का लिड रिमूव करते हैं, उसके अंदर इम्प्योर वाटर डालते हैं. दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग. वो मेरे स्टेप्स का पार्ट है. सो स्टेप नंबर 1 क्या है? द लिड ऑन द टॉप, लिड एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट टैंक इज रिमूव्ड एंड second paragraph में आएगा. वो सेकंड पैराग्राफ में फंक्शनिंग आएगा. अभी अभी Okay, फंक्शनिंग नहीं okay, बताया कि okay, okay. पानी कैसे प्योर हो रहा है. अभी मैंने सिर्फ पार्ट्स बताए हैं. ठीक है. Okay. मेटल का कोई वर्णन देना जरूरी है क्या? मेटल वर्ड तो Which लिखा नहीं, अगर कहीं लिखा होता तो मैं लिख देता. मैंने मेटल कहीं लिखा है? मैंने तो नहीं लिखा मेटल. uh, which metal this is tank? आई डोंट नो ना, अगर लिखा होता तो हम लिखते, नहीं तो वी वोंट राइट. Okay. इट कैन बी एनीथिंग, राइट? वी डोंट नो. सो जब नहीं पता तो हाउ वुड बी राइट? इट कैन ऑल्सो बी प्लास्टिक, राइट? Yes. प्लास्टिक टैंक्स भी आते हैं. वी डोंट नो, सो वी वोंट राइट. Okay. Okay, so let's go. The next paragraph with regards to its function, with regard to the functioning, with regard to its functioning or with regard, yes. सर जिस क्वेश्चन में आपने को बोला होगा दो दो चीज का, अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कंस्ट्रक्टेड कैसे है और हाउ इज फंक्शन, तो एक पैराग्राफ में अपन है ना कंस्ट्रक्टेड लिखना है और एक में फंक्शन लिखना है, Yes. मतलब तो दो दो पैराग्राफ बना रहे हैं. तो पैराग्राफ बना रहे हैं, एक में हम उसके पार्ट्स लिख रहे हैं और एक में हम उसकी फंक्शनिंग बताएंगे. सर Absolutely. जिस भी क्वेश्चन में दो चीज का बोला होगा उसी में अपने दो पैराग्राफ में अलग अलग चीजें बतानी होंगी अपने को. नॉर्मल में तो हम दोनों में उसकी फंक्शनिंग ही लिखते हैं. ठीक है. नॉर्मल में तो नॉर्मल. नॉर्मल में बाकी जो आएंगे जो मैंने कल करवाया था उसमें तो सिर्फ फंक्शनिंग ही आती है दोनों पैराग्राफ्स में. ओके. ओके. ये वाले में हाँ ऐसे. जी. ठीक है. And कल इसमें दोनों आएंगे. इसमें दोनों आएंगे ना, इसमें एक में मैंने उसके पार्ट्स बताऊंगा और एक में मैं फंक्शनिंग बताऊंगा. राइट. क्लियर. यस सर, धन्यवाद. हाँ जी. कल वाली जो क्लास है ना, व्हेन यू राइट, तो वो तेरे को लिखना आ जाएगा कि कैसे लिखना है. दैट विल गिव यू इवन मोर क्लैरिटी. तो इस क्लास को हाँ लगाने जी के सर, बाद धन्यवाद. तेरे को टाइम मिलेगा वो भी लगा लेना. ठीक है. हाँ जी सर. ओके. हाँ जी सर. विद रिगार्ड टू इट्स फंक्शनिंग, चलो फंक्शनिंग की बात करते हैं फर्स्टली. और इन द फर्स्ट स्टेप, द लिड of the first tank
is removed and impure water is poured into it. The water passes through the 3 layers and gets purified. And gets purified or gets filtered, whatever you want to write, you can. After this, and I want to connect it, after which it moves into the second tank. Through the U-shaped pipe. In this tank, the water is stored and it is taken out through the tap at the bottom when required. That's it. When needed, if you want to have a differentiation, because so this is what I would have written. So this is the body paragraphs for this. So if you see, this is the length. Now, due to the 2 paragraphs, I'm able to get some length. नहीं तो length नहीं बनता. अगर एक paragraph में you would have wanted to write it, length भी नहीं आता, and तुम्हें भी लगता कि incomplete है. And because the question itself has 2 parts, it would sound, you might lose bands also because you have not addressed the second part. Now, if you have a doubt, please let me know. नहीं तो अगला वाला graph भी ऐसा ही है और वो you all are going to participate in it when I write it. So if you're clear here, tell Sir, me. Yes. second paragraph, can you explain again, please? तो एक बार स्टेप्स हम पैसे देखते हैं, चल पहले, ठीक है. देख यहाँ पे लिड दिख रहा है कि लिड को पहले क्या करा है, रिमूव करा है, राइट? यू कैन सी दैट. Yes, ठीक sir. है. एंड फिर हमने पानी को, इम्प्योर पानी को अंदर डाला है. अब पानी तीनों लेयर्स के थ्रू क्या करा है, पास करा है. एंड फिर वो मूव ऑन कर गया किसके अंदर, मूव टू द सेकेंड Another कंटेनर. tank. ठीक है, एंड द सेकेंड टैंक, यस, अनदर टैंक. एंड इस टैंक में उसको स्टोर करा जाता है और जब चाहिए होता है तो टैप के थ्रू उसको निकाल लिया जाता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. So now see what I read. Firstly, the lid of the first tank is removed and impure water is poured into it. The water passes through the 3 layers and gets purified. The water अब pass करता है 3 layers से and gets purified. सर यहाँ पर अभी फिर सेकंड मर्तबा मेंशन नहीं करना ना कि 3 layers क्या है ना, तो वो नहीं मेंशन करने की जरूरत ना, वो हमने पहले वाले में बता दिया. यस सर. ठीक है. और अब ध्यान रखना कि अब हम द 3 layers कह रहे हैं, द फर्स्ट टैंक कह रहे हैं, क्योंकि हम ये इनको पहले बता चुके हैं कि कौन यस सा टैंक है. ठीक है, तो एग्जामिनर को पता है कि पहला टैंक कौन सा है, दूसरा टैंक कौन सा है, ही हैज एन आइडिया. ऐसे ही दो यू शेप पाइप, क्योंकि पहले मैंने बताया हुआ है एक यू शेप पाइप है, तो उसको पता है किस पाइप की बात हो रही है. तो इट इज ऑल, टैप के पहले भी द आया, वहां पे इट हैज अ टैप था, पहले एक टैप था, अब वही वाले टैप से हम रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारा द आना है जब भी हम मेंशन करना है. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है. आफ्टर विच इट मूव्स टू द सेकंड. यस समीम. Sir, read please. After. After which, okay, so पहले purify हो गया water, after Yes, which sir. it moves into the second tank. इसके Yes, बाद sir. ये पानी move कर जाता है किसके अंदर, second tank. Through this U-shaped pipe. हाँ, through the U-shaped pipe. Clear? Yes, sir. In this tank, the water is stored and it is taken out through the tap at the bottom when needed. तो इस टैंक में water को store करा जाता है and it is taken out through a tap at the bottom, through the tap at the bottom when required. Clear, sir. Clear? Yes, सर sir. क्वेश्चन करूं? Sorry, repeat, Harmeet. सर एक क्वेश्चन करूं? हाँ जी, पूछो पूछो. तो ये दी वाला कंसेप्ट क्या है, क्योंकि आप कह रहे हो कि यहाँ पर अपन ने लगाया है दा, तो क्योंकि अपन ने ना अच्छा, पहले उनको Harmeet, ना मैं मेंशन okay, किया okay. हुआ है. I'll explain. देख,
देख इंग्लिश में ना एक रूल होता है, मैं देखो रूल सिंपल फॉर्म में बताता हूँ। देख, आई हैव अ पेन, हाँ जी सर। ठीक है, मेरे पास एक आई पेन, हैव यस सर। ठीक है। अब अब द ये पेन इज ब्लैक। अब यही बात, और ना अब ये देखना, मेरे को दोनों में फर्क बताना, दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है। आई हैव ए पेन दोनों में कोई ब्लैक। फर्क है कि सेम बात? सर फर्क है। क्या फर्क है बताओ। सर ऊपर वाले में ना सेम पेन की बात कर रहे हैं अपन, दी लगा लगा दिया तो, और नीचे वाले में सर अपन ना ए ए पेन है, एक पेन है, कौन सा पेन है उसकी बात नहीं की हुई, Exactly. क्योंकि आगे एक ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल सही है, पहले एक पेन है, फिर वही वाला पेन ब्लैक है। अब यहाँ पेन पे की एक बात पेन है, बात हुई है। ठीक है, पर अब बट कोई हाँ। भी पेन यस ब्लैक इन कलर है, मैं उस पेन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक यस है। सर, ओके सर, धन्यवाद। हाँ ठीक है, जी सर। तो अब मेरा यहाँ पे कहने का ये मतलब था, जब मैं हाँ बता जी सर। दूंगा, पहली बार बताऊंगा तो मैं उनके पहले क्या लगाऊंगा, जैसे A. यहाँ पे लगाया है, ठीक है। हाँ, पर दूसरी बार यस उनकी सर। बात करूंगा तो उनके पहले क्या लगाऊंगा। लूंगा दा। तो, तो ये बात बताइए बस। हाँ जी सर। क्लियर? हाँ जी सर। ओके, Yes, sir. चलो, एनी अदर डाउट्स एनीवन? No doubt. चलो, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड ग्राफ दैट आई वांट टू कवर, जो देख के तुम्हें डर लगेगा, और मैंने बोला था मैं कराऊंगा, डिफिकल्ट है, पर मेथड सेम ही है। एंड में तुमने करना है मेरे साथ, तो देख के घबराना मत, करने की कोशिश करना, आराम से होगा। और ना थोड़ा बहुत गलत होगा बीच में, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितना हम ग्रामर को नहीं गलत करेंगे। Okay, that will be our approach. We'll make the grammar, we'll make sure the grammar is right, passive language is right. Okay, so the next graph I want to cover is this one. अब ये देख के डर लग रहा है, अगर किसी को डर है तो आई क्लैरिफाई, बहुत इजी ग्राफ है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, इट्स एन इजी इजी ग्राफ, जस्ट होल्ड ऑन। Thomas Alva Edison का graph. ये वाला नहीं, जी लाइट तो हमने नहीं नहीं, ये हॉट एयर बलून पे, इजी है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड। ओके, जस्ट होल्ड ऑन 1 second. Yes. Okay. So I hope you can look at the graph. Again, do you know why I'm going to write it in two parts? Because of the question. The question says what? Describe the main parts and indicate how it functions. Is it clear? yes sir. यस सर। Okay. So introduction, would someone like to write the introduction? The process graph illustrates. This Illustrates graph that What does it that illustrate? illustrate the Yeah, main parts, very good. You could have written main the part of structure. whole air. ओके, सो मेन पार्ट्स लिख सकते हैं, पर क्वेश्चन में भी मेन पार्ट्स है, तो इस बार तो स्ट्रक्चर लिखते हैं, जस्ट टू बी डिफरेंट। द स्ट्रक्चर ऑफ अ हॉट एयर बलून, Of air balloon. एंड सेकंड पार्ट क्या लिखता हूँ मैं? आई डोंट थिंक यू वर हियर यस्टरडे, व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट डू आई राइट सेम वे? एंड द How it's go up, ascending and ऐसे लिख सकते हैं, how it's go हाँ, ascend and descend. एंड हाउ इट असेंड्स एंड डिसेंड्स लिख सकते हैं, गो नहीं लिखेंगे, हाउ इट असेंड्स एंड डिसेंड्स लिखेंगे, ठीक है। सो हाउ एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट्स फंक्शन, बस ये भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes. एंड हाउ इट फंक्शंस भी लिख सकते हैं, बोथ आर राइट। यहाँ पे प्रॉपरली स्टेप्स नहीं है, तुम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो, मोर देन ओके, बट ठीक है, इतना कोई गलत नहीं है ये भी। ओके, लेट्स कम टू द ओवरव्यू। लाइक आई सेड, यू हैव टू टॉक अबाउट द मेन पार्ट्स। अब एक बार ना, मैं नहीं हूँ, तुम सोचो तुम एग्जाम में हो, हाउ मेनी मेन पार्ट्स आर देयर एंड आई वांट यू टू नेम देम। 4 मेन पार्ट्स है मेरे ख्याल, ये मैंने आंसर ही कर दिया। चलो, मेरे हिसाब से 4 मेन पार्ट्स है, चलो बताओ कौन कौन से हैं। दैट्स ऑल, आराम से, पहले चारों सोचो, फिर इकट्ठे बोलना, एक एक नहीं बोलना।
पहले चारों सोचो क्या मेन पार्ट्स हैं। Sir, should I start? या It's valve, gas cylinder, basket, and balloon envelope. very good. I also agree with the four main parts. The first part is the valve, which she said. What's a valve? Sir, that is used to maintain the pressure or to flow of Yeah, anything. I agree with you. What is it used for? But what is a valve? Just another question. क्या होता है valve? पता है? Sir, which can we can open it and we can close it. हाँ That पता है open to किसको कर stop or to allow to float something to very fluid or good. anything. हाँ तो वो वाल्व होता क्या एक तरह से एक ओपनिंग होती है। वेरी गुड। जिसके थ्रू कोई चीज जिसके थ्रू एयर या लिक्विड बाहर या अंदर जाता है उसको वाल्व कहते हैं। सो इट्स लाइक एन ओपनिंग। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ लाइक एन पाइप और एन ओपनिंग जैसे कोई होल सा हो गया जिसको हम बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। हम बंद करेंगे तो वो चीज को रोक देगा हम खोल देंगे तो वो चीज को बाहर जाने देगा। वेरी राइट वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। सो शी सेड वाल्व इज द फर्स्ट पार्ट। The balloon envelope, she said, is the second part. जो उसके आसपास balloon envelope है, that would be the second part. The third, she said, is a gas cylinder tank, which I agree. जो उसके नीचे burners and the gas cylinder tank वो एक part हो गया. And the fourth part would be the basket, जहाँ पे लोग खड़े होते हैं, बैठते हैं. That will be the basket. Whatever. So these are the four parts. If anyone has a doubt या तुम्हें लगता है ये मेन पार्ट नहीं है कोई और मेन पार्ट है तो मेरे से पूछो। गैस सिलेंडर टैंक एंड बर्नर्स इकट्ठे मान रहा हूं मैं इकट्ठे ही है ना। बर्नर्स का मतलब क्या होता है यू नो बर्नर्स जो बर्न करते हैं वो बर्न गैस के साथ ही करते हैं तो उनको इकट्ठे एक ही मान रहा हूँ उनको सेपरेट नहीं मान रहा। सो एनी अदर क्वेश्चन एनी अदर डाउट है कि मेन पार्ट्स ये हैं कुछ कोई कंफ्यूजन। ऑल ऑफ यू एग्री विद द मेन पार्ट्स। ये जो वाल्व का ऑर्डर है ये वाल्व का ही पार्ट है इसलिए इसको अलग अलग नहीं लिख रहे। ओके आई होप इट इज क्लियर। सो ओवरऑल इट इज क्लियर दैट द हॉट एयर बलून जस्ट लाइक yesterday यहाँ पे ना प्रोसेस नहीं लिखना है यहाँ पे हॉट एयर बलून लिखना है। वहां पे हम प्रोसेस लिखते हैं यहाँ पे हम चीज का नाम लिखेंगे। प्रोसेस में चार चीजें नहीं है बलून में चार चीजें कंसिस्ट ऑफ फोर मेन पार्ट्स द बास्केट फॉर पैसेंजर्स ओके गैस सिलेंडर या बर्नर्स एंड बर्नर्स बोल सकते हैं बर्नर्स और गैस सिलेंडर टैंक यू कैन मेंशन एनीथिंग बर्नर्स balloon balloon envelope valve and and valve and the wall बल्ब and the walls and the walls. That's it. Okay. अच्छा अब यहाँ पे ना एक्चुअल में देखा जाए तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट और कोई एंडिंग पॉइंट है नहीं। ये ऊपर जाने के लिए ये नीचे जाने के लिए। अब एक बात बताओ मुझे बताओ वैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैंने अब यहाँ पे मेरे को सोचना पड़ा मैं ओवरऑल में क्या लिखूं। मेरे को नहीं मेरा नहीं चल रहा था कि यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे वो होता है। पर मैंने एक बात नोटिस करी ऊपर जाने में और नीचे जाने में दो ही पार्ट्स में डिफरेंस है। क्या दो पार्ट्स तुम्हें लग रहा है जिनमें चेंज आया है। Sir, एक एक तो सर तो वाल वाल्व क्लोज है वाल्व एक राइट। बर्न्स ऑफ करने से ऊपर जाएगा हाँ तो एक बर्नर्स की पोजीशन पे और किसकी पोजीशन पे और किसकी स्टेट पे डिपेंड करता है। वाल्व को बल्ब सर ओपन और तो क्लोज करने ये लिखेंगे हम बोलेंगे वाल्व का जो असेंट है डिसेंड है वो डिपेंड करता है किसकी स्टेट पे द स्टेट ऑफ द बर्नर्स एंड द वॉल्व। तो मैंने ये लिखा द असेंट और द डिसेंट ऊपर जाना या नीचे जाना of the balloon depends upon the state of the valve and the burners। तो ये लिखते हैं कि उनकी क्या स्टेट है वो ओपन स्टेट में है वो ऑन है कि ऑफ है क्या स्टेट है उनकी। तो उसके लिए मैंने वर्ड यूज करा स्टेट। ठीक है यहाँ पे इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट द वर्ड ऑल्सो
just to say that you're writing another line. Also, the ascent or the descent of the balloon depends upon the state of the valve and the burners. So ये मेरा second sentence है. यहाँ पे steps थे नहीं properly, तो उनको लिखना बड़ा अजीब लग रहा था. क्या लिखूंगा? वो ऑल्सो की ना स्पेलिंग गलत होगी। किसके? ऑल्सो ऑल्सो की स्पेलिंग गलत होगी। ठीक है. Done. Okay. Good. यस Any other doubts? चलो. अब एक काम करते हैं. फंक्शनिंग पहले क्या करना है पहले? चलो पार्ट्स की बात ही करते हैं. चलो इन डिटेल. अब सारे पार्ट्स बताओ. किससे स्टार्ट करोगे मुझे बताओ. What would you start with? सर जो कॉमन है कॉमन नहीं, चारों पार्ट्स बताएंगे. बट विच पार्ट वुड यू स्टार्ट विथ? सबसे पहले सबसे क्या स्टार्ट करेंगे? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बना जैसे ना, थिंक ऑफ इट. बनाएंगे. अगर ये बनाएंगे बैलून, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? क्या मेन पार्ट है? गैस सिलेंडर पहले नहीं, आई वुड नॉट स्टार्ट विद दैट. वॉल वॉल भी नहीं. वो तो बैलून के बिना समझा ही नहीं पाएगा तू कि बैलून के टॉप पे है वॉल्व है. Basket. आई वुड स्टार्ट विद द बास्केट. देख, बास्केट से स्टार्ट यस करते हैं. बास्केट के अंदर ही है. बास्केट के अंदर बर्नर्स पड़े हैं. बास्केट के अंदर गैस सिलेंडर टैंक है. या बैलून के नीचे बर्नर्स हैं, तो बास्केट के टॉप पे अटैच्ड है बैलून एनवेलप. और बैलून के टॉप पे वॉल्व है. तो अगर बास्केट से स्टार्ट करेंगे तो वो इजी रहेगा. तो मैं बास्केट करूंगा और बास्केट से सारा बताऊंगा. Is it clear? Anyone, anything else you want to start with? कैसे start करोगे? Give me ideas. You're in the paper. चलो बताओ कैसे start करोगे? How would you start? तुमने बस 4 parts बताने हैं और कुछ नहीं बताना. तुमने नहीं बताना वॉल्व ओपन है क्लोज्ड है. तुमने बस बताना है कि टॉप पे वॉल्व है. वॉल्व के साथ एक वॉल्व कॉर्ड, एक थ्रेड लगा हुआ है. अब तो अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है. ये वॉल्व है, ये वॉल्व क्लोज्ड है. यहाँ पे ये धागा लटक रहा है. धागा जो है ना, वो किसके हाथ में है? वो हाथ में किसके? पैसेंजर्स के. अगर उन्होंने वॉल्व को खोलना है, वो उसको खींचते होंगे, तो वो धागे को खींचेंगे. ये वाल्व एट द टॉप ओपन हो जाएगा. हवा बाहर निकल जाएगी, बैलून नीचे आ जाएगा. और वो बर्नर्स को ऑफ कर देंगे. सो ये हो रहा है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ठीक है. तो ये चीजें हो रही हैं. अब यस बताओ, हाउ हाउ वुड यू स्टार्ट? ये प्रोसेस लिखोगे, स्टार्ट कैसे करोगे? व्हाट वुड बी योर फर्स्ट फर्स्ट लाइन जब तुमने पार्ट्स लिखने हैं? ये तो बस सर कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग है. So you can write at the bottom of the balloon is the basket. ठीक है. बास्केट के अंदर एक गैस सिलेंडर टैंक है, जहाँ at the bottom of the balloon is the basket where passengers can sit or stand. ठीक है. Also the basket has burners which are connected to gas cylinder tank, which are connected to a gas cylinder tank. At उसके बाद the balloon envelope is attached to the top of the basket. Okay, and at the top of the basket, at the top of the balloon, there is a envelope, there's a valve. Um, and the valve is attached to a valve cord, which and the other end of the valve cord is in the hands of the passengers. So something like that I will end up writing. तो मैं ऐसे लिखूंगा कि बर्न बास्केट है. बास्केट के अंदर गैस सिलेंडर बर्नर्स पड़े हैं जो गैस सिलेंडर टैंक के साथ अटैच्ड हैं. फिर बास्केट के अंदर कौन खड़ा या बैठ सकता है? पैसेंजर्स. फिर बास्केट के ऊपर क्या अटैच्ड है? बैलून एनवेलप. और बैलून एनवेलप के टॉप पे एक वॉल्व है जो कनेक्टेड है बैलून वाल्व एक कॉर्ड के साथ. एंड द अदर एंड ऑफ द कॉर्ड इज इन द हैंड्स ऑफ द पैसेंजर्स. एंड जो अदर एंड ऑफ द कॉर्ड है वो किसके हाथ में है? पैसेंजर्स के हाथ में. तो मैं ये लिखता हूँ. ओके. Anyone has any doubts, please let me know. Otherwise, we can go forward. अच्छा. अब अगर अब फंक्शनिंग बतानी हो तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर असेंडिंग और फॉर गोइंग अप. तो क्या करते हैं बताओ? बर्नर्स को क्या करा? दो बर्नर्स आ ऑन ऑन करने की इंग्लिश क्या होगी? तो बर्नर्स आ, व्हाट्स द वर्ब? स्विच Start. Switched on. On is not a verb. Switched on. तो the burners are switched on. And valve at the top को क्या कर रहे हैं? क्लोज Closed. Very good. अब बैलून क्या हो गया? फूल गया. द बैलून एनवेलप फूल गया. फूल गया की इंग्लिश आती है किसी को?
as well. Or another word. It starts from I with an I. Inflates. जब किसी चीज में हवा भर जाती है ना हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेट्स. जैसे टायर को इन्फ्लेट कर दो, हवा भर दो. तो इन्फ्लेट इज द word. So the balloon envelope inflates and the hot air balloon goes up and balloon ऊपर जाता है. अब for descending क्या करा जाता है? The burners are switched off. The valve at the top is opened. The balloon envelope deflates. तो balloon envelope हो जाता है, वो क्या हो जाता है? Deflates and the balloon descends. And balloon क्या करता है? Descend करता है. That's what we are going to write in the second body paragraph. कि पहले ऊपर जाने के लिए हम ये करते हैं, बर्नर्स को स्विच ऑन करते हैं, बलून वाल्व को क्लोज करते हैं, बलून फूल जाता है और बलून ऊपर जाता है. नीचे लाने के लिए हम वाल्व को ऊपर खोल देते हैं, बर्नर्स को स्विच ऑफ कर देते हैं एंड द बैलून जो एनवेलप है वो डिफ्लेट कर जाता है, वो डिफ्लेट हो जाता है, मतलब उसमें से हवा निकल जाती है वो, और वो नीचे आ जाता है. That's what I'll end up writing. That's what I would write in the body paragraphs. If you have a doubt, please let me know. नहीं तो we can write this and we can be done with it. And third one तुम्हें मैं दिखा देता हूँ, तुमने अपने आप करना है. अगर अब कोई डाउट है तो बताओ. Anyone, any doubts? No? No, sir. Okay, let's write it in detail. Um, at the bottom of the hot air balloon, the, the basket, where passengers can the basket also has burners which can be which are connected to gas cylinder. very good, which are connected to gas cylinder. That's the balloon envelope is attached to the top of the basket, and at the top of the balloon, at the top of the envelope, is a valve which is connected with a thread. Other end of the valve cord, you can call it a cord, is in the hands of the so like that really quickly, which is connected with the cord, which is a better word, which is connected with the cord is fine. It's fine. Which is attached to a cord. Better. जो जुड़ा हुआ है. Okay. Now we write the functioning for ascending or for going up. You can write anything. The burners are switched on and the valve at the top is closed. As a result, the balloon inflates. Envelope you can write if you want, inflates, and the balloon goes up. On the other hand, for descending or for ascending or for going down, let's okay, for descending, the burners are
off, and the valve at the top is opened by pulling the cord. Consequently, the balloon envelope deflates and the hot air balloon comes down. See, because I thought what I was going to write, I wrote it so quickly. It took me just 5 minutes to write the body paragraph क्योंकि मैंने सोचा हुआ था क्या लिखना है. With you, I thought about it and then I wrote it. अब थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा, it's fine. The point is passive should be right. So the burners are switched on. Object is our verb third form. The valve at the top is closed. Passive is right. Burners are switched off. The valve at the top is open by pulling the cord. This is what we did yesterday. So make sure your passive language is right. That's what I want. If anyone has a doubt, please let me know. Okay. So ये एक special case है process का. Otherwise, all the processes, same logic works. You don't need to do anything special in any of the other processes. This is one special case of process, which I've covered with you. इसके अलावा कुछ करने वाला नहीं है. Sir, Yes. can you explain again This part, whole part the at whole a glance? part. Okay. At a glance, we'll explain. Let's start with the introduction. So introduction, I have two parts. First, I say the process graph illustrates the structure of the thing, जो भी चीज है, like a hot air balloon, and the Yes. steps involved in its functioning, and वो कैसे Yes. काम करता है and how it functions. And if you think you don't have steps, you could have written on how it functions. ऐसे लिख सकते थे. अगर steps नहीं है, हमारे पास यहाँ पे steps नहीं है. So if you want to make it proper, you can just write how it functions. Okay. ओवरऑल इट इज क्लियर. फिर उसके पार्ट्स बताने. ओवरऑल में सबसे पहले उसके सारे पार्ट्स बताने. तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि उसके 4 पार्ट्स हैं, ये और ये. ऑल्सो Sir, four parts again दिखाइए. 4 पार्ट्स. Four एक parts. तो ये बास्केट हो गया जिसके अंदर हम बैठते हैं, खड़े होते हैं. फिर ये बर्नर्स और गैस सिलेंडर. अब गैस सिलेंडर और बर्नर इकट्ठे ही आता है, राइट. हम बिना बिना गैस के बर्नर को ऑन थोड़ी कर सकते हैं. उसको चलाने के लिए गैस चाहिए. तो एक ही पार्ट मान रहा हूं मैं इसको. फिर ये बलून एनवेलप, जो ये बलून है पूरा. और फोर्थ मैंने बोल दिया वॉल्व एट द टॉप. ठीक है. तो ये 4 पार्ट है. तो मैंने चारों लिख दिए. The basket for passengers, burners, balloon envelope and a valve. तो balloon में ये 4 पार्ट्स होते हैं. फिर मैंने लिखा ऊपर जाना और नीचे जाना depends upon the state of the valve and the burners. ऊपर जाना और नीचे जाना burners पे डिपेंड करता है, valve पे डिपेंड करता है, क्योंकि वही मेन चेंज हो रहे हैं. ये balloon ओपन हो रहा है, valve ओपन हो रहा है, ये burners ऑन हो रहे हैं, burners ऑफ हो रहे हैं. तो मैंने ये लिखा कि इन पे डिपेंड करता है कि ये कैसे है, इनके साथ हमने क्या करा हुआ है. तो मैंने ये लिखा है ऑल्सो द असेंट और द डिसेंट. ये असेंट और डिसेंट वर्ड्स आई हैव टेकन इट फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ. यहाँ पे लिखा हुआ है असेंडिंग. असेंडिंग मींस गोइंग अप. उसका उसका फॉर्म ही यूज कर रहे हैं. द असेंट और द डिसेंट ऑफ द बलून डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द valve एंड द burners. फिर फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने सारे Clear. बताए हैं. इज इट क्लियर टिल नाउ? Overall तक clear. ठीक है. तो अब मैंने पार्ट्स बताए. मैंने बोला बॉटम ऑफ द हॉट एयर बलून में बास्केट है, वेयर पैसेंजर्स कैन सिट और स्टैंड. तो मैंने बोला बॉटम पे वो है. अब मैंने गैस सिलेंडर टैंक नहीं लिखा, वो मैं लिख रहा हूँ. ठीक है. वो भी द बास्केट ऑल्सो हैज बर्नर्स विच आर कनेक्टेड टू गैस सिलेंडर टैंक्स. तो बास्केट के अंदर बर्नर्स भी पड़े हैं जो कनेक्टेड है. किसके साथ कनेक्टेड है? Gas गैस cylinder tank. इसके साथ. तो ये भी लिख दिया. सेकेंड पार्ट हो गया. फिर मैंने balloon envelope is attached to the top of the basket and at the top of the envelope is a valve which is attached to a cord. तो मैंने लिखा कि जो balloon वो है वो जो envelope है वो top of the basket पे attached है. तो if you see basket का top वाला हिस्सा, ये basket है, basket के top पे attached है envelope, और envelope के top पे एक valve है, और जो वॉल्व है वो अटैच्ड है किसके साथ? एक कॉर्ड के साथ. कॉर्ड होता है धागे के साथ, तो एक धागे के साथ अटैच्ड है.
That's what I wrote. Okay. फिर मैंने क्या लिखा है? The other end of the cord is in the hands of the passengers. If you see the other end, जो cord का other end है, वो passengers के hands में है. So you Yes, can sir. see that cord and they've shown it going to the passengers. And passenger can open and close it. हाँ हाँ, वो कर सकते हैं ना, खींच के, वो धागे को खींचेंगे, वो ओपन हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा. Is it clear? Clear, sir. Okay. उसके बाद उसके बाद मैंने फंक्शनिंग बताई है. फॉर गोइंग अप द बर्नर्स आर स्विच्ड ऑन एंड द वाल्व एट द टॉप इज क्लोज्ड. तो जब ऊपर जाना है तो वाल्व को क्लोज करा और बर्नर्स को स्विच ऑन करा. पहले तो ये लिखा, द बर्नर्स आर स्विच्ड ऑन एंड द वाल्व एट द टॉप इज क्लोज्ड. एज अ रिजल्ट द बलून एनवेलप इन्फ्लेट्स. तो इसका नतीजा होता है कि बलून फूल जाता है एंड द बलून गोज अप. दैट्स इट. डन. गोइंग अप खत्म हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे बहुत अच्छा ऑन दी अदर हैंड आ रहा था क्योंकि मैंने नीचे जाने की बात करनी थी. फॉर गोइंग डाउन और फॉर डिसेंडिंग. तो द बर्नर्स आर स्विच्ड ऑफ एंड द वाल्व एट द टॉप इज ओपन बाय पुलिंग द कॉर्ड. यहाँ पे मैंने कॉर्ड वाला एंगल भी ला दिया कि जब पुल कर रहे हैं तो वो ओपन हो रहा है. अब वो पुल कर रहे हैं मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ये कॉर्ड की पोजीशन देखो, यहाँ पे ऊपर है, yes, यहाँ yes, पे sir. कॉर्ड Yes, की sir. पोजीशन नीचे, तो उसको खींचा हुआ है, पता चल रहा है Yes, यहाँ sir. पे खींचा Yes, नीचे sir. के लिए. तो Yes, sir. मैंने लिख दिया द valve at the top is open by pulling the cord. Consequently, the balloon envelope deflates. तो balloon अंदर हवा अंदर उसमें वो हो जाता है, मतलब वो फिस जाता है. जैसे कोई Yes, बलून sir. से हवा निकल जाए, वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, वैसे हो गया. एंड द हॉट एयर बलून कम्स डाउन एंड द बलून जो है वो नीचे आ जाता है. Yes, sir. That's it. Clear, sir. Clear? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. You're welcome. Let's move on. Let's cover the homework जो मुझे देना है. तो मैं एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि इतना इजी नहीं होता कई बार. सो लेट्स जस्ट डिस्कस इट रियली क्विकली एंड उसके बाद तो तुमने ही लिखना है. ओके. अब वो मैं पूरा भी नहीं बताऊंगा. तो ये होम स्मोकरी है, मतलब घर में तुमने मीट को स्मोक करना है. लाइक वी ईट ना, स्मोकी मीट होता है, उसको चारकोल के ऊपर कोयले के साथ पकाते हैं, उसमें वो स्मोकी फ्लेवर आता है. तो वो स्मोकी मीट या फिश बनाने का तरीका बताया हुआ है. तो अगर अब तुम देखो उन्होंने क्या करा हुआ है, उन्होंने Sir, समझा नहीं, समझा नहीं. होम स्मोकरी इज लाइक घर में जो मीट को स्मोक नहीं करते, घर के अंदर मीट लेके आते हैं, उसको स्मोक में बनाते हैं, उसको डायरेक्ट आग में नहीं बनाते, उसको बनाते हैं स्मोक के ऊपर. हमारी कंट्री में इतना कॉमन नहीं है. आई डोंट नो अबाउट बांग्लादेश. इट्स नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया बिकॉज इंडिया में वेजिटेरियंस बहुत ज्यादा है. लाइक आई ऑल्सो, मतलब कम होता है. पर फॉरेन कंट्रीज में ना लोगों को वो मीट में वो स्मोकी फ्लेवर बहुत पसंद आता है, स्मोक का फ्लेवर. तंदूरी जो बांग्लादेश में तंदूरी. ये बांग्लादेश में ये हाँ, कॉमन नहीं है. कॉमन नहीं है. ठीक है. पर स्मोक पे बनाते हैं, वो धुएं पे बनाते हैं, तो धुएं का फ्लेवर आता है. यू गेट द पॉइंट. वो Yes, yes, की sir. फ्लेवर आता है, चार मतलब थोड़ा चारकोलिश फ्लेवर आता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. कोयला कोयले का वो फ्लेवर आता है, वो बहुत अच्छा भी लगता है. मतलब हम पनीर आई हैव ईटन पनीर, जो वो काला काला हो जाता है थोड़ा सा, वो डायरेक्ट आग पे नहीं पकाया जाता, वो धुएं में पकाया जाता है, स्मोक पे, स्मोकरी. इज इट क्लियर? Yes, sir. Now clear. ठीक है. तो अब नाउ यू कैन सी देयर आर थ्री बॉक्सेस. The two boxes are placed underground and the third box is placed above the ground. तो तीन बॉक्सेस हैं, दो बॉक्सेस बिलो द ग्राउंड है, एक बॉक्स को ऊपर रखा हुआ है, ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है. फिर वो क्या कर रहे हैं, अब अगर अब पार्ट्स करो तो जो वो कनेक्टेड हैं टू ईच अदर, जो तीनों पार्ट्स हैं, तीनों बॉक्सेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू थ्रू पाइप्स. अब वो कर क्या रहे हैं, वो पहले पहले वो, अगर तुमने फंक्शनिंग बतानी है, तुम लिखोगे लिड ओपन करते हैं, फ्रेश एयर को अंदर आने देते हैं फर्स्ट कंटेनर, फर्स्ट बॉक्स के. अब ये एयर पासेस ऑन इनटू द सेकंड बॉक्स. सेकंड बॉक्स में वो लॉग्स को बर्न कर रहे हैं, वो लॉग्स को जला रहे हैं. यहाँ पे दिख रहा है उन्होंने लकड़ी रखी हुई है, लकड़ियों को जलाया जा रहा है. इसके ऊपर वाला लिड क्लोज्ड है. अब जब लकड़ियों को जलाते हैं तो धुआं धुआं बनेगा. तो धुआं Yes, जो sir. है वो ऊपर जा रहा है थ्रू अ पाइप इनटू द थर्ड बॉक्स. एंड इस थर्ड बॉक्स में उन्होंने टांगा हुआ है मीट, फिश को टांगा हुआ है, अदर चीजों को टांगा हुआ है, फिश एंड मीट को टांगा हुआ है. एंड फिश एंड मीट इस धुएं में पकता है एंड इट बिकम्स रेडी, और वो रेडी हो जाता है. दैट्स इट.
तो बस ये लिखना है, ये फंक्शनिंग है, ये होम स्मोकरी सर है। यस, सर फिश और मीट तो मेंशन नहीं है। वो दिख रहा है ना, शेप से मैं गेस मार रहा हूँ। देख, ओके ओके। व्हाट डू यू थिंक फिश, दिस इज? फिश ही आई लग थिंक रहा है ना। फिश फिश। फिश और फिश ये फिश। थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको मैंने मीट मान लिया। यस सर, यस सर, ठीक यस। है, सर एंड अगर हम और ओवरऑल अगर हम फिश ही मान ले तो? फिश मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। मैं तो यूसुफ, एक वर्ड ऐड हो जाता है ना इसमें, लेंथ की प्रॉब्लम आती है, लेंथ बढ़ाने के लिए मीट भी लिख रहा हूँ, नो अदर सर रीजन। ओवरऑल में फ्रेश एयर से शुरू होता है, एंड फिश रेडी फिश और रेडी मीट में खत्म होता है। यही बात तो स्मोकिंग ऑफ कहूंगा ना। स्मोकिंग ऑफ फिश, एंड विद द स्मोकिंग ऑफ स्मोकिंग ऑफ फिश। फिश। ठीक है। स्मोकिंग ऑफ एंड फिश। begins with the entry of fresh air into the first. फ्रेश एयर, फ्रेश एयर Okay. से शुरू होता है, स्मोकरी और स्मोकरी फिश से खत्म होता है। Yes. Entry दैट्स इट। of fresh air in the first box begins with the सर entry of fresh air. Yes. सर ओवरऑल में हाँ फर्स्ट हमको लिखना है इसका स्ट्रक्चर लिखना है ना सर, पार्ट्स लिखना है ना हाँ कि लीड है और ये है। हाँ, फिर तीन सेकंड में बॉक्सेस हैं, तीन बॉक्सेस हैं। सर, दो बॉक्सेस तो लिख के अंडरग्राउंड है। देख हाँ पापा बता, एक अबव द ग्राउंड है, पता चल रहा है ये ग्राउंड लेवल है। तो एक यस ग्राउंड सर। लेवल के ऊपर है दो। और तीनों तो बॉक्सेस क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है? इंटरकनेक्टेड है। हाँ, इंटरकनेक्टेड है। तो ये बता दे। ठीक है। और फिर नेक्स्ट लिखेंगे सर कि कैसे वर्क कर रहा है। हाँ, फिर तो तो बता के बिगिन पहले में पहले वाले बॉक्स का लिड उतारते हैं, उसमें फ्रेश एयर एंटर करती है। फिर ये जो सर फ्रेश एयर है एंटर मूव्स ऑन इनटू द सेकंड बॉक्स। सेकंड बॉक्स में वो क्या क्या बर्न कर रहे हैं? लॉग्स आर बर्नड। ठीक है। यस सर सर ओवरऑल में लिखेंगे कि टू बिगिन विथ फ्रेश एयर एंड टू एंड विथ Begins with the entry of fresh air in the first box. ओके Process एंड करना। And ends with the smoking of fish in the third box. स्मोकिंग। ठीक है। सर कैसे दो पैराग्राफ में डिवाइड करूंगा इसको? पहले वाले में सिर्फ पार्ट्स बताना ना, कि तीन बॉक्सेस हैं, दो नीचे हैं एक ऊपर है, तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, बस इतना लिखना। सर फ्रेश एयर और कहाँ से आता है? ये वो कैसे? सेकंड में ना, वो सेकंड वाले में हम बोलेंगे कि पहले वाले का लिड खोल देंगे, उसमें फिर फ्रेश एयर एंटर करेगा। फ्रेश एयर कैसे एंटर करेगा? अपने मेरे आप ना, क्वेश्चन का। देख तूने, जब मैं खिड़की खोल दूंगा तो अपने आप अंदर हवा नहीं आ जाता? कोई कोई But I thought এটা this is pressurized by नो someone. नो नो, बस उनको ऑक्सीजन चाहिए ना। देख, अगर अगर यहाँ पे हवा नहीं आएगी ना, तो ये आग 2 मिनट में बुझ जाएगी। क्योंकि आग को जलने के लिए क्या चाहिए होता है? हवा चाहिए। हमने समझा था कोई हवा दे रहा है नहीं नहीं, किसी बस से। नॉर्मल एयर, बस आग के लिए हवा चाहिए, अंदर बाहर से अंदर हवा आ रही है बस। इज इट क्लियर? यस सर, और नाउ क्लियर। मैं देखो बताता हूँ, पता है क्या होगा? ओके। समीम, हवा को ना अपने आप आ जाएगी जब तू यहाँ पे बर्न करेगा ना, यस सर। तो वो ऑक्सीजन यूज अप हो जाएगी, यहाँ पे एक तरह से हवा का खिंचाव बन जाएगा। यहाँ की जो हवा है वो हल्की होके ऊपर चले जाएगी, तो यहाँ पे हवा कम हो जाएगी, तो वो अपने आप हवा को, अपने आप वो अट्रैक्ट भी कर लेगा। यू गेट द सर पॉइंट? सर एक क्वेश्चन है। हाँ, हवा क्यों राइट साइड से ही उतर जाएगा? क्यों नहीं लेफ्ट साइड से उतरेगा? हाँ, यहाँ से वापस यस यस यस। आ यहाँ से तो फिर वो अंदर आ रहा है, उसको बाहर डिफरेंट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऊपर से बंद है। यहाँ पे, सर यहाँ ओवरऑल में नहीं लिखना है ना कि ये इसका क्या क्या फंक्शन है। ओवरऑल में फर्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप बस। और ये थ्री बॉक्सेस इसके विच आर जॉइंड विद ईच अदर, बस इतना लिखना कि होम स्मोकरी में थ्री बॉक्सेस हैं विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, बस। कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स लिखना है। हवा उल्टा क्यों नहीं जाएगा मुझे भी नहीं पता। ठीक है, बट मैं एक बात बोलूं, हवा हल्का होता है, तो यहाँ पे वो सीधा यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं कि लॉक्स के बस सीधा ऊपर उन्होंने पाइप बना दिया है, तो वो ऊपर जाता है ना हवा। ये तो ये ऐसे जा रहा है, ये जो पाइप है ये ऊपर की जा रही है। तभी थर्ड बॉक्स उन्होंने कहाँ रखा है समीम? ऊपर है वो यस ग्राउंड सर। लेवल पे क्यों नहीं है?
अगर वो ग्राउंड लेवल पे होता तो हवा नहीं जाता, उसको ऊपर रखा है क्योंकि हल्का है। जो हल्की हवा होती है ना, जिसको आग लगाई होती है, वो हमेशा कहाँ जाती है? ऊपर। Yes. ठीक है। कोल्ड एयर भारी होती है, वो नीचे आती है। वार्म एयर इज लाइटर, इट गोज अप। And this meat सर or fish, this all अटका हुआ है. That means या close. हैंगिंग, हैंग करना, कपड़ों को टांगना, हैंग। सर एक ना डिफ्यूजन होता है और सर उसमें क्या होता है, हमेशा ना चीज ना हाई कंसंट्रेशन टू लो लो कंसंट्रेशन जाता है। अब जैसे ना ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ऊपर हाई है तो वो लो लो की ना तरफ जा रही है। हाँ, यूर राइट, यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, तो वो यहाँ यहाँ जाए। पे कम होगी तो वो ज्यादा से कम कम की ओर जा रही है वो। हाँ, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। यस, डिफ्यूजन कहते हैं। यस, यूर राइट। Thank you, thank you. वेलकम। ओके, और कोई डाउट? इज इट क्लियर? कैन यू राइट दिस? Yes, sir. We can try. या यू कैन ट्राई। ठीक है, चलो ट्राई करो। इफ यू गेट इट रॉन्ग, आई गाइड यू। अदरवाइज दिस इज द होमवर्क एंड आई अपलोड सर द। ये क्लास ना अपलोड करोगे आप? मैं करूंगा, मैंने कल वाला भी करा है, यू वॉच दैट। मैं ये वाला हाँ भी। जी सर, धन्यवाद। Sir, can we get this PDF file? आई शेयर द पीडीएफ फाइल एज वेल। अभी मैं होमवर्क तो कर ही रहा हूँ शेयर। ठीक है। मैंने ना दोनों अलग अलग पीडीएफ में लिख दिया है। दोनों अलग अलग में लिख दिया फाइल्स में, मेरे को फाइल मिल नहीं रही थी। Sir, I sent yesterday homework. हाँ, मेरे को मिल गया। मैं अभी यूसुफ अभी चेक कर देता हूँ इसके बाद। ठीक है। बस ऐसे मेरे को रिमाइंड करा दिया कर यूसुफ। ठीक है। अब नाउ आई नो, आई जस्ट चेक इट। Okay, so I'll end it here. I hope you got it. This is the end of process charts. I hope you're clear. I'll ask ma'am to share all the process charts with you as well, ताकि अगर if you want to go over them you can। कोई भी अपने आप randomly try करना है, करो try। मैं पूरी फाइल भेज देता हूँ, कोई भी उठाओ, try करो। That's it। Thank you, sir. You're welcome। Okay, so we'll Sir, थैंक यू one सर। thing, sir. yes। सर, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा ना कि इसका एक स्ट्रक्चर भी बताना है और इसका हाँ, वर्क्स भी बताना है। ये सिर्फ अगर ऐसे बोला होगा तभी हम ऐसे करेंगे, नहीं तो हम करेंगे नहीं। बस हमने जैसे कब हम लोग करना है? प्रीवियस हाँ, प्रीवियस में जैसे था सिर्फ ओनली प्रोसेस। हाँ, तो हमने नहीं करना है। यू Okay, sir. क्लियर? यू क्लियर? अगर Yes. क्वेश्चन के दो पार्ट्स नहीं है, हम भी दो पार्ट्स नहीं मानेंगे। अगर क्वेश्चन के दो पार्ट्स है तभी हम दो पार्ट्स मानेंगे। Okay, sir. इज इट क्लियर? हम Yes. क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन को हम क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, हम अपना नहीं आंसर कर रहे हैं। Okay. ओके, ओके। सो यस, एनी अदर डाउट्स? No, sir. Thank you. You're welcome। Chalo, I'll end it here। See you all tomorrow। I'll upload, the class will be uploaded in half an hour। Also upload the file in a file I'll upload just now, and homework I'll upload just now। The video को time लगता है। Okay, okay, done। See you all tomorrow। No, tomorrow will be a reading class, not a writing class। I'll post it in the group। वो भी मैं डाल देता हूँ group में। It'll be a reading class। I'll answer, I'll do a particular type of questions tomorrow। Okay, maybe paragraph headings tomorrow। If anyone has a problem with paragraph headings, be there tomorrow, 5:15, same time, we'll be covering it। Yes, sir. Yeah. Okay.